Hello students. So today let us begin with Unit 2, A Gift of Chapels. Before going into the detail, I would like to give you a brief about this chapter. This chapter is about Mridu, who lives in Chennai with her grandparents. One day she goes to visit her aunt Rukumani and her cousins Lali, Ravi and Meena. Mridu noticed a pair of large chapels when she reached their house. Her cousins showed her a kitten in the backyard, which they had found the very same morning in the front of the gate. The contrast between what people say and what they actually practice has been portrayed here, where parents advise to take care of animals. On the other hand, scream when you do so with these animals brought from the street. They share their secret plight and how they fed milk to the kitten, hiding from their mother. They had named the cat Mahendra Varma Pallava Ponai. Tracing instances from history, the cousins proved that the cat was a descendant of a lion, the lion which was the emblem of Pallava dynasty. So, let us begin with the chapter. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Needu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. एकदम खुशी खुशी रुकुमनी ने गेट खोला तो वहाँ पे रवि और मीना एकदम से बाहर आते हैं. रवि खींचता है मृदु को अपने घर में. पुलिस खींचना. तो मृदु कहती है कि वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स फर्स्ट. तो एकदम नीटली एक ब्लैक लार्ज शूज के सैंडल्स के बाजू में अपने स्लीपर्स रखती है. वो एक्चुअली डस्ट से कवर्ड थे और वहाँ पे हर एक फिंगर या हर एक टो के निशान इजीली देख सके वैसे थे. एंड ये जो दो बहुत बड़े थे वो कोई दो बिग टोज के थे, मतलब बिग टोज के प्रिंट थी उसमें, जो टोज काफ़ी लॉन्ग एंड स्क्रॉनी थे. स्क्रॉनी इज थिन. Mridu didn't have much time to wonder about whose sleeper they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with the sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shelf. मृदु को ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला सोचने के लिए कि वो किसके स्लीपर्स हो सकते थे, क्योंकि रवि उसको एकदम से खींच लिया. ड्रैग टू द बैकयार्ड. वहाँ पे एक थिक बिटर बेरी बुश, यहाँ पे एक मतलब अच्छे से ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, बिटर बेरी बुश. वहाँ पे एक टॉर्न फुटबॉल था उसके पीछे, जो एकदम सैकिंग मतलब सैक के हिसाब से आजू बाजू सैंड लगा के अच्छे से अरेंज किया हुआ था. वहाँ पे एक छोटा सा किटन था. नाउ किटन इज बेबी ऑफ अ कैट. वो लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ, जो नारियल पानी का हाफ शेल्फ होता है उसमें से वो दूध पी रहा था. We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing. मतलब बोलता है कि हमने उसको आज सुबह ही गेट के बाहर देखा था. वो म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो जैसे किटन कैसे बिल्ली कैसे आवाज़ करती है वो वैसे आवाज़ कर रही थी. मीना ने उसको ऐसा कहा. It's a secret. Amma says Party will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. तो बोलता है कि दिस इज़ अ सीक्रेट, किसी को बताना मत. अम्मा मतलब मम्मी ऐसा बोलती है कि अगर दादी को ऐसा पता चला, पार्टी इज दादी को ऐसा पता चला तो वो तुरंत पुद्दू मामा के घर चले जाएंगी. क्या पता चला कि अगर हमने यहाँ पे कैट रखी हुई है तो. People are always busy telling us to be kind to animals. But when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi.
Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Party saw me with a glass in my hand just now. I told her I'm very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Party, I'll wash it myself. Why should I put you to the trouble? I told her. मतलब पीपल ऐसा हमेशा हमें लोग कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, बट व्हेन वी स्क्रीम, बट जब हम केयर करते हैं तो दे स्टार्ट स्क्रीमिंग कि डोंट ब्रेक दैट डर्टी क्रिएचर एट होम. मतलब कोई भी एनिमल हो, अगर बाहर हम उनकी केयर करें देन दैट इज़ फाइन, बट वी आर नॉट सपोज टू ब्रिंग दैम होम. ऐसा रवि ने कहा कि पता है कितना डिफ़िकल्ट था आज किचन में से दूध लाने के लिए. पार्टी ने मुझे देखा कि पार्टी मतलब दादी ने मुझे देखा कि मेरे हाथ में एक ग्लास था. मैंने उनको बोला कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ इसलिए मुझे पीना था. तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा ना कि मुझे मोस्ट ऑफ द मिल्क आई हैड टू ड्रिंक सॉरी, क्योंकि उनके तो ऐसा लगता कि थ्रो हर ऑफ द सेंट. मैं उनको मिसलीड कर रहा हूँ तो ही ऐसा लगता था. एंड जब मैंने ड्रिंक किया मिल्क को तो उन्होंने मुझसे टम्बलर मांगा कि एक ग्लास दे दे. तो मैंने बोला पार्टी आप क्यों ट्रबल कर रहे हो, मैं खुद इसको वॉश कर दूंगा. I had to run and pour the milk into the coconut shelf and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of other way to feed Mahendran. मतलब बोलता है कि मुझे ये सब इतना जल्दी जल्दी करना पड़ा कि मुझे फटाफट जाके कोकोनट शेल में मिल्क डालना था. देन अगेन आई हैड टू गो बैक टू द किचन, वो टम्बलर को वॉश करना था. उनको इससे पहले कि उनको कुछ सस्पिशियस लगे, उनको पहले कुछ डाउटफुल लगे, उससे पहले मुझे इतने सारे काम करने थे. अब हमें सोचना, कोई दूसरे तरीका सोचना पड़ेगा कि हम महेंद्र को कैसे खाना खिलाए. Mahendran? This little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो मतलब मृदु बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी कि वाह ये छोटी सी किटी का नाम आपने महेंद्र रखा हुआ है. एंड ये काफ़ी रियल नाम था जैसे हम ह्यूमंस को देते हैं, बिकॉज वरना हम किटन्स या कैट को एकदम क्यूट से छोटे छोटे नेम देते हैं. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनाई, MP Ponai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. तो कहते हैं उसका पूरा नाम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनाई. अगर तुम्हें शॉर्ट में बुलाएं तो यू कैन कॉल इट MP पोनाई. ये एक कैट की बहुत अच्छी ब्रीड है. ब्रीड इज टाइप. उसके फर को देखो, एकदम जैसे लायन के होते हैं एकदम वैसे ही उसका फर है. एंड तुझे पता है कि पल्लवा किंग का जो एम्ब्लेम था वो क्या था? तुझे नहीं पता? ऐसा उसने एकदम एक्सपेक्टेंटली मृदु को देखा कि शायद शी माइट आंसर. मृदु गिगल्ड कि ये क्या है? थिंक आई एम जोकिंग? वेल just wait, I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. Fact is, Mahendran here is a descendant from that very same ancient cat. A close relative, scientifically speaking of none other than the lion. The Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on, walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. तुझे ऐसा लगता है मैं जोक कर रहा हूँ? Well, then just wait. I'll show you something. मैं तुझे कुछ बताता हूँ. और इससे तो क्लियरली पता चलता है कि तुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता. तो कभी महाबलीपुरम नहीं गई?
मिस्टीरियसली उसने ऐसा पूछा. देन आई सॉ स्टैचू. मैं जब महाबलीपुरम गया था स्कूल से तो मैंने वहाँ पे एक स्टैचू देखा. थाथास मतलब ग्रैंडफादर्स. एंड द फैक्ट इज महेंद्र जो यहाँ का डिसेंडेंट है, मतलब उनकी जो थ्रोन का वारसदार है, वो एकदम ऐसे एंशंट कैट की तरह दिखता था. एंड अगर ध्यान से देखे साइंटिफिकली अगर बोले तो ये इज नन अदर देन द लायन. मतलब उसकी एक इट इज सेड दैट कैट्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ लायन. तो पल्लवा डायनेस्टी थी तो पल्लवा का जो एम्ब्लेम था वो लायन था. रवि ऐसा बोलता गया. वो विटरबेरी बुश के आसपास चलता गया. एक ट्विग था, एक ब्रांच था जो उसको ऊपर नीचे करता था और उसकी आईज एकदम स्पार्कल कर रही थी. एंड ये कैट जो है वो महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट थी, मतलब जो मेन कैट थी, उसकी ही डिसेंडेंट है, उसकी ही मतलब रिलेटिव है. और मैं तुझे रिमाइंड करा दूँ, एंशियंट टाइम में कैट्स को इजिप्ट में वर्शिप किया जाता था. Descendant is a descendant of or comes from the same family. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mritu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mritu demanded. Huh, I'm telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess. Bastards? Yeah, that's it. मतलब वो एकदम अच्छे से बोल रहा था और वो अपनी आवाज़ को मतलब ही वॉज सेइंग इट प्राउडली. ऐसा लुक मीना और मृदु ने एक्सचेंज किया. तो मृदु पूछती है कि इन सब का इससे क्या लेना देना है. तो वो बताता है कि मैं ये सब तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इजिप्शियन कैट गॉड के डिसेंडेंट है. तो मृदु ने कहा सो वेल, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava's ships, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. Ravi flourished with his twig at Mahendran. MP Ponai here. वो eek! He shrieked, very pleased with him. तो बताया कि हाँ, वो एक कैट का जो गॉडेस था, उनके स्टो अवे इज समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड. वो जो कैट गॉडेस थी वो एक बार पल्लवा शिप में स्टो अवे होके आ गए एंड देन शी बिकेम महाबलीपुरम की ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज. एकदम अटक गया. वो अपनी ट्विग को फ्लरिश कर रहा था, मतलब प्यार से सहला रहा था. एंड वो महेंद्र के पास जाता है एंड देन सेड हियर MP पोनाई. ईक, उसने ऐसे श्रीक किया, मतलब हाउ एकदम हाई पिच पे आवाज़ की. वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था. Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. Just worse than Ravi's awful whoop, eek, was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Ponai was frightened out of his wits. Hair standing on the end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of the red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. मतलब महेंद्र एकदम अलार्म हो गया कि ये, क्योंकि वो उसके पास आया रवि, तो वो एकदम अलार्म हो गया. क्यों, वो कहाँ पे बिजी था, वो अपने क्लॉज को शार्प कोकोनट की जो शेल की एज होती है ना, वो उस पर शार्प कर रहा था. पर रवि का जो एकदम अजीब सा ऑ था, उससे बेटर क्रीच की विंडोज में से आवाज़ आई. एकदम वियर्ड साउंड था. तो मृदु एकदम स्टार्टल हो गई. इट वॉज मृदु वॉज शॉक. और MP पोनाई तो डर ही गई और उसने क्या किया, उसके बाल सारे खड़े हो गए एंड वो जो एक बैम्बू ट्रे था उस पे जाके कूद गई. एंड वो बैम्बू ट्रे में क्या था, रेड चिलीज थी जो ड्राई करने के लिए वहाँ पे रखी हुई थी. वो वहाँ पे अपने आप को छुपाने की ट्राई कर रही थी और उसके थोड़े अंदर फ्यू चिलीज अपने अंदर चली गई. मियाओ, एकदम से वो हॉल्ड मिजरेबल, एकदम गंदी तरीके से उसने वो आवाज़ निकाली. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन.
That's what noise, said मृदु. वो क्रीचिंग की आवाज और बढ़ती गई तो मृदु ने पूछा ये किस चीज की आवाज है. That's Lally learning to play violin, grunted रवि. कि वो तो लली है, वो वायलिन बजाना सीख रही है, ऐसा रवि ने बोला. She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lally is all time derailing, going completely off track. तो बोलती है कि ये कभी नहीं सीखेगी. जो म्यूज़िक के मास्टर है वो अच्छे से जैसे ट्रेन चलती है एकदम रिदम में वैसे आवाज़ निकालती है. जब लली बजाती है तो एकदम डीरेल, कोई ट्रैक ही नहीं होता है, completely off the track she plays the music. So for your homework is you have to check this comprehension check and write it in your notebook. Thank you.